और खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के केसीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना की 45 लाख हेक्टर ज़रई जमीन को सैराब किया जाएगा। सीएम ने असेंबली में ये बात कही। ఇవి మేము దుర్వినియోగం చేయటం లేదు। ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రజలు। వారికి నేను మళ్ళొకసారి హామీ ఇస్తా ఉన్నా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎట్టి పరిస్థితులలో 44-45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయి అధ్యక్ష। మన సింగూరు కలకల్లాడుతుంది, మన నిజాం సాగర్ కలకల్లాడుతుంది, బ్రహ్మాండమైనటువంటి పంటలు పండుతాయి। ఆ గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా బాగా ఉంటుంది, అద్భుతం జరుగుతుంది। ఊహించిన రీతిలో పంప్ హౌజులు ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి చాలా విజయవంతంగా ఈ ప్రాజెక్టు ముందుకు పోతుంది అధ్యక్ష। విద్యాసాగర్ గారు మనవి చేసినట్టు టూరిజం గురించి నేను టూరిజం మినిస్టర్ గారికి చెప్పినాను ఆల్రెడీ, వారితో మీరు చర్చ చేయండి। ఆ ప్రకారంగా ఆ ఎస్ఆర్ఎస్పి దగ్గర సిఈ గారు కూడా నేను చెప్పిన అధ్యక్ష, స్థలం కూడా బహుశా వాళ్ళు చూసి పెట్టినారు, ఇప్పటికే ఐడెంటిఫై కూడా చేసినారు। మంచి టూరిజం ప్యాకేజీని అక్కడ తీసుకొద్దాం, దాన్ని బాగా డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगरनी मजदूरों के लिए तोहफे का ऐलान किया। केसीआर ने मुलाजमीन के लिए 28% बोनस जारी करने का ऐलान किया, जिसके तहत एक मुलाजिम को 1,0899 रुपए हासिल होंगे। ప్రతి కార్మికుడికి మన సోదరులే కాబట్టి మన కోసం పనిచేసే వాళ్ళని మనం కూడా ఆరోగ్యంగా జాగ్రత్తగా తక్కువ స్ట్రెస్తో పెట్టుకుంటే సమాజానికి కూడా మంచిది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కూడా 100% దాన్ని చేస్తాం అధ్యక్ష। హోంమంత్రి గారు చెప్పినారు, పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ పేరే అధ్యక్ష, బట్ దట్ ఇస్ ఏ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ। మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్గా ఉండి అప్పుడు దాన్ని ప్రారంభం చేసినారు, దాన్ని స్టడీ కూడా చేసినాం। ఐటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినారు, చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ నిపుణులు కూడా దానిలో వచ్చినారు। అది మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెంటర్ అవుతుంది అధ్యక్ష। విపత్తుల నిర్వహణ కావచ్చు, అనేక రకాల ఇబ్బందుల నిర్వహణ కావచ్చు, అనేక రకాల ఉత్పాతాల నివారణ కావచ్చు, సివియర్ డ్రాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు, ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, అటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఏకకాలంలో ఒక చోట నుంచే చూసేటువంటి అవకాశం దానిలో ముఖ్యమంత్రి గారు। और के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में अहम रोल है। हुकूमत पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कई काम कर रही है, जो दूसरी रियासतों के लिए मिसाल है। తక్కువ స్ట్రెస్తో పెట్టుకుంటే సమాజానికి కూడా మంచిది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కూడా 100% దాన్ని చేస్తాం అధ్యక్ష। హోంమంత్రి గారు చెప్పినారు, పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ పేరే అధ్యక్ష, బట్ దట్ ఇస్ ఏ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ। మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్గా ఉండి అప్పుడు దాన్ని ప్రారంభం చేసినారు, దాన్ని స్టడీ కూడా చేసినాం। ఐటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినారు, చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ నిపుణులు కూడా దానిలో వచ్చినారు। అది మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెంటర్ అవుతుంది అధ్యక్ష। విపత్తుల నిర్వహణ కావచ్చు, అనేక రకాల ఇబ్బందుల నిర్వహణ కావచ్చు, అనేక రకాల ఉత్పాతాల నివారణ కావచ్చు, సివియర్ డ్రాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు, ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, అటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఏకకాలంలో ఒక చోట నుంచే చూసేటువంటి అవకాశం దానిలో ముఖ్యమంత్రి గారి కోసం పెట్టినారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారి కోసం పెట్టినారు, ఇతర అన్ని శాఖలు కూడా దానిలో స్పేస్ పెట్టినారు। అదొక అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఆధీనం పోలీస్ చేతిలో ఉంటుంది అధ్యక్ష, కానీ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలకే అద్భుతమైన సేవ చేసేటువంటి సెంటర్ కింద గొప్ప కమాండ్ కంట్రోల్ అధ్యక్ష। అది ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ జనవరి కల్లా కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली में अवामी मसाइल को उठाया। मौज़म खान ने उस्मानिया अस्पताल की अज़मत रफ्ता बहाल करने और सीएम रिलीफ फंड के लिए दी गई दरख्वास्तों को जल्द मंजूरी देने की मांग की। एक हैदराबाद की शान है, वहाँ की इमारत एक हैदराबाद का ताज किया बोल सकते हैं आप, और उस उस्मानिया हॉस्पिटल से लाखों जो बीमार थ्रू आउट तेलंगाना में रहते हैं उस उस्मानिया हॉस्पिटल से फायदा उठा रहे हैं। और आपके और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल पहले ये वायदा करे थे इस हाउस के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से दवाखाना उस्मानिया को रिनोवेट किया जाएगा। आज 5 साल हो चुके हैं, 1 रुपया भी आज तक एलोकेशन नहीं किया गया है। इंटेक वाले ये कहे हैं कि ये उस्मानिया दवाखाना आज जो मौजूद है और 200 साल तक रह सकता है उसको अगर रिनोवेट किया जाएगा। सीएम रिलीफ फंड का चेक आने के लिए वो पेशेंट उस तकलीफ के मौके के ऊपर, उस परेशानी के मौके के ऊपर कहां से भी उधार ले रहा है या अपने परेशानियों में कहीं तो भी जिक्र कर कर लोगों से हाथ बदल पैसा लेकर वक्त वाहिद इलाज कराते हैं। वैसे चीज को हमको मदद करना बहुत जरूरी है सर। मेरी आपके जरिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, जितने भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के
आपके पास फाइल्स आते हैं, आप इमीडिएटली सारे फाइल्स को सैंक्शन इमीडिएटली कराकर वापस करना चाहिए। तेलंगाना के वजीर शहरी तरक्यात के तारक रामाराव ने असेंबली में कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल का काम पुराने शहर में भी जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल को अच्छी कारकर्दगी पर इसे अवार्ड हासिल हो चुके हैं। 80 ఫీట్ల కుదించి వారందరినీ సంతృప్తిపరిచి వారి కోసం ఒక హాకింగ్ జోన్ కూడా కట్టించి వారి ఆమోదంతో అలైన్మెంట్ వారికి ఇంకో వేరే మార్గం కుదరదు। ఎందుకంటే ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ పోతుంది, కోటి విమెన్స్ కాలేజ్ పోతుంది, అవి రెండు కూడా చారిత్రకమైన ప్రాంతాలు కాబట్టి వాటిని తొలగించకూడదనే నిర్ణయం తీసుకొని అందరి ఆమోదంతో జనామోదంతో మరి ఆ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం। ఓల్డ్ సిటీ విషయం నేను చెప్పాను, ప్రభుత్వం కమిటెడ్ అధ్యక్ష, ఎగ్జిస్టింగ్ అలైన్మెంట్కే పోతున్నాం। మిత్రులకు ఒక అనుమానం ఉంది అధ్యక్ష, ఈ అలైన్మెంట్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమైనా జాప్యం జరిగిందా, ఆ జాప్యం వల్ల పేపర్లో రాసినట్టు ఏమైనా కాస్ట్ ఓవర్ రన్ ఉందా అని అనుమానం వారికి ఉంది అధ్యక్ష। అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు। ఇంతకుముందే నేను చెప్పినట్టు బెంగళూరు కంటే, ఢిల్లీ కంటే, చెన్నై కంటే అవి 9 సంవత్సరాలు పడితే మనం 6 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసుకున్నాం। మీకు ఎలాంటి అనుమానం అపోహలు అవసరం లేదు। విజయవంతంగా మెట్రో నడుస్తుంది। దయచేసి మీ అనుమానాలు తొలగించుకొని ఈ అభినందించండి చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాను। तेलंगाना की गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि देहातों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का तस्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने देहातों की तरक्की पर तवज्जो देने की ज़रूरत जाहिर की और साथ ही देही तरक्की के लिए पंचायत और बल्दियात को बाइख्तियार फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत और बल्दियात समाजी इंसाफ को कायम करने में अहम रोल अदा करते हैं। Honorable Abdul Kalam ji, the major soul of the India is in villages, and if without the rural development, because 60% of the population is living in the rural areas, without the rural development the country cannot be a developed country. So it is mandatory to concentrate on the rural development. Even though we got independence quite 70 years back, unless otherwise the rural population gets its share, it cannot be a developed country. It is an essential ingredient to give the power to the people so as to enable them to solve the local developmental issues that are very critical for the sustainable rural development. With this view, the government of India has launched a movement that is Gramodaya se Bharat ke Uday, emphasizing the priority of the government. Similarly, the people planning campaign under the caption Sabki Yojana Sabka Vikas has given impetus for the decentralized planning to achieve economic development and social justice through the Gram Panchayat, which is ground level local government. हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल एक्सपो का इफ्तिताह अमल में लाया गया। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क भर में हेल्थ हब बन गया है। हैदराबाद और तेलंगाना में सरमायाकारों के लिए कई सहूलतों को मुहैया किया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के 7वें इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इस इलेक्शन में 5 ऑफिस बेयरर्स के ओहदों के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में थे। रायदही के लिए जुमला 4,500 तलबा अहल थे। हैदराबाद कैंपस के 2,790 तलबा और हैदराबाद के बाहर मुल्क भर में फैले 13 कैंपस में तकरीबन 1,800 तलबा शामिल हैं। इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए। शेख उमर फारूक को मानू तलबा यूनियन का सदर मुंतखब कर लिया गया है। इलेक्शन जो है वो पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है। इतना अच्छा पीसफुल और इतने अच्छे तरीके से मैंने जो पहली बार इलेक्शन होते हुए देखा है, तो ये बड़े खुशी की बात है। और यहाँ पे जो है 72% इलेक्शन हुआ है। ये पहली मर्तबा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पाँच ऑफिस बेयरर्स है, जिसके लिए हर पोस्ट के लिए 3 कॉन्टेस्टेंट्स है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, हर एक के लिए 3 कॉन्टेस्टेंट्स है। और इसी मेंबर्स के लिए जुमला 15 है, किसी में अनअपोज्ड है, किसी में जो है 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स है। हमारी पूरी कोशिश रही कि इलाकायत को ख़त्म करें
और यहाँ पर जो है मेयार बढ़ा, यूनियन का मेयार बढ़ा है और इलेक्शन का मेयार बढ़ा है। लोग जो है मुद्दों के ऊपर बात करें, आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बात करें, फ़िक्र के ऊपर बात करें और अवाम को जो एक एजेंडा और एक विजन के ऊपर बात करें। तो ये हमारा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का नारा है और इंशाल्लाह हमारी इलाकाई हमारा डाइवर्स पैनल रहा, हर स्टेट से हम नुमाइंदगी लिए हैं। और उसके साथ जो एकेडमिक एक्टिविज़म का नारा है, देखिए मानो एक ऐसी उर्दू यूनिवर्सिटी है, लोग को उर्दू नाम से ही जो है ये समझते हैं कि यहाँ पर बहुत बैकवर्ड लोग हैं। काबिलियत लोग भी है, काबिल लोग भी हैं यहाँ पर, जो उनकी काबिलियत के बेस पे बाहर जाके बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ के जो एकेडमिक्स है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके मेयार को बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स है, चाहे वो UPSC हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या CTET और नेट हो, ये तरीके के और एक डिस्कशन का माहौल, एक डिबेट का माहौल यहाँ पर जिस तरीके से दीगर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, वो माहौल को हम यहाँ लाना चाह रहे हैं ताकि लोग जो हैं तलबा यहाँ से पढ़े और यहाँ बाहर निकल के जो एक अच्छा सा प्रोडक्ट बन के बाहर निकले, अवाम की रहनुमाई कर सके, उन मजलूम मुसलमान दलित आदिवासी की रहनुमाई कर सके जो आज हिंदुस्तान के पूरे लोग जो है हमारे लिए नज़र लगा के बैठे हैं। हैदराबाद के शाबीरपेट के द्रासपल्ली गांव में जादू करने के शुबे में एक शख्स हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक यह वाकया लक्ष्मी नामी खातून की मौत के बाद पेश आया। खातून 5 साल से बीमार थी। अंजनेलू नामी शख्स लक्ष्मी की आखिरी रस्मात के लिए शमशान घाट गया। खातून के रिश्तेदारों ने अंजनेलू पर खातून को जादू करके हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया और शमशान घाट में ही अंजनेलू की पिटाई कर दी और उसकी मौत के बाद उसकी लाश लक्ष्मी की चिता के करीब डाल दिया। इतला मिलने पर शाबीरपेट पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 2 अफराद को शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस वाक़ये के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी फोर्स तैनात की गई है। बालानगर DCP पद्मजा रेड्डी ने बताया कि मकाम हादसा से हड्डियों के अलावा ब्लड के सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ఆంజనేయులు అనే పర్సన్ మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ వస్తే దాని మీద మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇక్కడ కొన్ని సీన్లో మనం వెరిఫై చేస్తే ఒక బ్లడ్ స్పాటెడ్ ఒక ఏరియా, తర్వాత ఒక కర్చీఫ్ మనకు ఇక్కడ దొరికింది. అండ్ సీన్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా మనము స్కెచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇన్సిడెంట్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి వెరిఫై చేసుకోవడము, అతను మిస్సింగ్ ఉండడము, తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ స్పాట్ ఉంది ఇక్కడ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లూస్ టీమ్ తోటి కన్సర్న్ మెటీరియల్ అంతా కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అది మనము ఆ బోన్స్ అవన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేస్తే అది ఎవరు ఏంటి అనేది ఫస్ట్ డిజీజ్ ఐడెంటిఫికేషన్, విక్టిమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతుంది. తర్వాత వీళ్ళు ఎవరైతే సస్పిషన్ చెప్తున్నారో అతను కూడా దొరికిన తర్వాత वरंगल जिले के जंगांव में DCM और कार एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महबूबाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद अपने लड़के साई शंकर को, जो लंदन में MS की तालीम हासिल कर रहे हैं, एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार कार DCM के अंदर घुस गई। कई घंटों की मशक्क़त के बाद कार को बाहर निकाला गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके पैनल ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। अजहरुद्दीन ने सदर के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। 2014 HCA इंतखाबात में भी अजहरुद्दीन ने हिस्सा लिया था। मुख्तलिफ तनाज़ात के सबब उन्हें मुश्किलात पेश आई थी। BCCI की जानिब से रुकावटें दूर किए जाने के बाद अजहरुद्दीन की कामयाबी यकीनी समझी जा रही है। 27 सितंबर को इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। अजहरुद्दीन के पर्चा नामजदगी के इदखाल के मौके पर मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब के जिम्मेदारान मौजूद थे। और रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों ग्राम पंचायत के नताज जारी। ट्रेनिंग की तकमील के बाद मुंतखब उम्मीदवारों को दी जाएगी मुलाजमत। चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर से की मुलाकात। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल याददाश्त गवर्नर को पेश। YSRCP हुकूमत को करार दिया शैतानी हुकूमत। जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। गोदावरी कश्ती हादसा मामला। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात का जारी किया हुक्म। प्रकाशम में स्कूली बस उलट गई, 10 तलबा जख्मी, 6 की हालत नाजुक। सरपरस्त स्कूल इंतजामिया पर बरहम। आंध्र प्रदेश हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर मुनक़दा
ग्राम सेक्रेटरीट इम्तिहान के नताज जारी किए गए हैं। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने नताज को जारी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा व दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने 1,26,000 नौजवानों को ग्राम सेक्रेटरीट के तौर पर भर्ती करने का ऐलान किया। 1 सितंबर तक 8 सितंबर तक इन्हें मुख्तलिफ पोस्टों के लिए 14 इम्तिहानात हुए थे। मुंतखब उम्मीदवारों को 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिन में 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर तमाम मुंतखब उम्मीदवारों को नौकरियां दी जाएगी। रियासत की मौजूदा वाईसीपी हुकूमत जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश में है, यह कहना है तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू का। वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर से शिकायत की। मुलाकात के दौरान 13 सफ़हात पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी गवर्नर को पेश की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तेलुगु देशम लीडरों को निशाना बना रही है, इन पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। महकमे पुलिस पूरी तरह से नाकारा हो गया है। डीजीपी ओहदे से लेकर पुलिस ओहदेदार तक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोडेला शिव प्रसाद राव की मौत के लिए भी वाईसीपी हुकूमत जिम्मेदार है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद से इन पर 18 बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए थे। गवर्नर కలిసి కోళ్ళ శివప్రసాదరావు గారి యొక్క ఆత్మహత్యకు కలిగిన కారణాలు, అదే మాదిరిగా రాష్ట్రంలో ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితులన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. మొన్న చలో ఆత్మకూరు ప్రోగ్రాం ఇవ్వడం, ఆ రోజు పోలేకపోయిన దానివల్ల పోలీసుల అడ్డంకుల వల్ల, కానీ రాక్షస ప్రభుత్వం వీళ్ళు చేసే పనులు చూసిన తర్వాత ఒక పక్క ఆవేశం, ఒక పక్క బాధ, ఇంకో పక్క బాధ్యత కూడా గుర్తు చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంలో వాళ్ళు చేసే తప్పుడు ప్రచారాలు, చేసిన తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఎదురుదాడి చేయడం చాలా నీచం, పరమ దుర్మార్గం. ఈ వీళ్ళ అలిగేషన్స్ అన్ని బుక్ చేసిన కేసులు చూస్తే వేగ్గా ఉంటాయి. ఇంకొక పక్కన బేస్లెస్, అదే మాదిరిగా అవాస్తవాలకు దూరంగా అన్ని కూడా పెట్టేశారు. ఒక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే గవర్నర్ గారు చెప్పారు. मशरक़ी गोदावरी में पेश आए कश्ती हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का रियासती हुकूमत ने हुक्म जारी किया है। मशरक़ी गोदावरी के मजिस्ट्रेट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस हादसे की वजूहात और सूरत हाल के अलावा मकामी अवाम से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल करने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने अंदरून 60 यौम हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। विशाखा एजेंसी इलाकों में 414 किलो गांजे की स्मगलिंग को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। इस सिलसिले में एक्साइज और इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने इंटरस्टेट गैंग के 2 अफराद को भी हिरासत में लिया है। ये दोनों अपनी कार में 414 किलो गांजे को पड़ोसी रियासत तमिलनाडु मुंतकिल कर रहे थे। विशाखा घाट रोड के करीब चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान गांजा जब्त किया गया। इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने जब्त शुदा गांजे की मौजूदा कीमत 40 लाख रुपए बताई है। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और ब्लड डोनेशन की तायद में कृष्णा जिला मुस्तक़र पर शऊर बेदारी रैली निकाली गई। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से निकाली गई शऊर बेदारी रैली में स्कूली तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। इस दौरान प्ले कार्ड के जरिए खून का अतिया देने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आवाम को वाकिफ़ करवाया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक खून का अतिया देना किसी को दूसरी जिंदगी देने के बराबर है। इसी तरह बिगड़ते माहौल से हो रहे नुकसानात पर भी शऊर बेदार किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में निजी स्कूल की मिनी बस उलट गई। इस हादसे में 10 तलबा और तालिबात जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 तलबा की हालत नाजुक है। मकामी अफराद ने जख्मी तलबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तमाम जख्मी तलबा को उंगुल सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ऐन शाहिदीन ने हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट करनूल में कायम करने की मांग करते हुए वकला का एहतजाज जारी है। करनूल में वकला जंजीरी भूख हड़ताल पर हैं। एहतजाजी वकला से रुकन असम्बली करनूल हफीज खान ने मुलाकात की और इजहार यगानत किया। उन्होंने वज़ीर आला से करनूल में हाई कोर्ट कायम करने के लिए नुमाइंदगी करने की वकला को यकीन दहानी कराई। एडवोकेट्स मिलकर
एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कर्नूल में हाईकोर्ट देना चाहिए बोलकर। पिछले साल भी जो है 100 दिन तक वो लोग प्रोटेस्ट करे थे कि कर्नूल शहर में हाईकोर्ट होना बोलकर। मैं क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल था और क्योंकि पब्लिक का ये ख्वाहिश है कि कर्नूल में जो है हाईकोर्ट आना चाहिए, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड को जरूर मैं सीएम साहब तक पहुंचाता हूं, क्योंकि सीएम साहब भी जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट चाह रहे हैं। तो हम पब्लिक के तरफ से जो पब्लिक का ख्वाहिश है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनकी ख्वाहिश को जो है मैं सीएम साहब तक भी लेकर जाकर उनको मनाने की मैं पूरी कोशिश करूं। कर्नूल पुलिस ने प्राइवेट चिटफंड के मालिक को अवाम को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी वेंकटदरी के मुताबिक चांद बादशाह ने डेली वेजेस पर काम करने वालों से रकम जमा की और उन्हें धोखा दिया और इसी रकम को सूद पर वो दिया करता था। लोन लेके रियल एस्टेट बिजनेस किया, फिर वो लोग उसको बैलेंस नहीं कर पाया, फिर बेच दिया पूरा प्रॉपर्टी। बेचने के टाइम में जो खरीदा उससे 50% का रेट में बेच दिया। तो इसलिए पूरा अभी जो भी प्रॉपर्टी है जो बेच दिया वो लोगों के लिए, और ये पूरा पैसा जो भी खाया पब्लिक का वो लोगों को ऊपर 420 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 468 ये पूरा केस बना के अभी A1 पहले मुजरिम है चांद बादशाह को अभी अरेस्ट करके। तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से हैदराबाद में 2 रोज़ा सदाए उम्मत कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया है। नामपल्ली नुमाइश मैदान में 19 और 20 अक्टूबर को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान, उलमा, मशाइखीन और दानिश्वर शिरकत करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में दरपेश मसाइल से निपटने और इसके हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। शहर हैदराबाद में 19 और 20 अक्टूबर हफ्ता और इतवार को मुल्क के मौजूदा हालात पर 2 रोज़ा ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम जमातों के ज़िम्मेदार कायदीन, उलमा, मशाइखीन, 150 के करीब मुल्क भर से मुस्लिम कायदीन और उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ मेंबरान पार्लियामेंट भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और गैर मुस्लिम नामोर वकला भी NRC के मसले पर और दूसरे मसाइल के सेशन में शिरकत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।